Before starting with the equilibrium chapter, Harsha, you had a question, right? Yes, sir. Okay. So let me first of all discuss that. एक तो आपके पास है कि हाउ आर यू गोइंग टू आंसर इट ना सर। हर्षा का सवाल क्या था? हर्षा का सवाल था दैट 1 molar that is written as 1 m is more concentrated than 1 mole which is written as 1 small m. ठीक है? Why और how? ठीक है ना, मतलब सभी why ही लिखते हैं. Why is a better choice of word. ठीक है? Now first of all let us see the formula. 1 molar is equal to 1 molar, it means what? 1 mole of solute in 1 liter of solution. In 1 liter of solution, if I see 1 mole, that means we have 1 mole of solute in 1 kg of solvent. यहां तक सही है हर्षा? ये सुनो, एनी डिफिकल्टी यहां तक? Sir, capital M is kg, right? कैपिटल एम इज Molarity, right? मोलारिटी. हाँ, Okay, so yeah, it's फाइन ना? yes, sir. Understood. ठीक है. Now let us suppose the solvent you are taking, let us suppose it is water for the sake of simplicity. If you are taking water, that means 1 kg means 1 liter. You are aware of this also? Yes, sir. And in 1 liter, if I take 1 liter, ठीक है. Now please see, when I am saying 1 liter of solution, this would obviously mean less than 1 liter of H2O. क्योंकि if you are taking 1 liter of solution, that means it will have solute as well as solvent. There will be some increase in volume once you add the solute particles. Make sense? That means the amount of water, if 1 liter solution है आपके पास, उसमें कुछ amount solvent का होगा, कुछ amount solute का होगा. Let us suppose बहुत कम amount solute का है, still I will say that the amount of solvent is less than 1 liter. Make sense? Yes, sir. ठीक है. तो from here only you can see that ज्यादा concentrated क्या हुआ, when we are taking 1 molar solution, 1 M, in that 1 mole of solute it is dissolved in less than 1 liter of water, and if you take 1 mole of solute then it is dissolved in 1 liter of water. अगर हम concentration को सिर्फ volume के terms में phrase करें, concentration it is equal to, let us suppose, the number of moles of solute divided by the volume of solvent. आप ये दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कम, नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों में सेम है, 1 मोल मत, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर इन विच केस? इन द केस ऑफ मोलारिटी. इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज लेस तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी. मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है. सो दिस इज हाउ. नो आई मीन यू कैन, अब इसको आप प्रूव करने जाएंगे तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट यू विल जस्ट से दैट 1 mole is 1 mole of solute in 1 liter of solution, and because 1 mole of solute in 1 kg of solvent, it is 1 molar, है ना? And 1 kg, अगर आप 1 liter of solution लेंगे, it will have less than 1 liter of H2. 1 liter of solvent से कम होगा, और यहाँ पे 1 liter. Okay, sir. So we have less amount of solvent here, है ना? Okay, so you will be able to explain this, yes or no? Yes, sir. चलिए, let us see how much we were done. We were doing some question Q और अच्छा Q और K वगैरह हम लोगों ने किया अभी. Production. अच्छा, did you guys do homework?
होमवर्क में किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। हाँ जी, होमवर्क। मरियम, डिड यू डू दी होमवर्क? यस मरियम। No, sir. नोहा, आपने किया? No, sir. नो, आपने तो, आप तो क्या डाउट पूछ रही थी होमवर्क के बारे में, फिर भी आपने नहीं किया। हम्म। Yes, sir, व्हाट I अबाउट did यू the. हर्षा? Share the assignment. यू डिड द होमवर्क? हाँ, दी असाइनमेंट। Sir. So what did you do about equilibrium till now from the last week? मरियम, आपने क्या पढ़ा इक्विलिब्रियम के बारे में? क्या हो रहा है गाइस? यू हैव अ गैप ऑफ 5 days, है ना? तो चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तो उड़ती जाएंगी चीजें। होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क वगैरह कीजिए। क्या कर रहे हैं फिर आप लोग, टाइम जो मिल रहा है आपको? अभी तो स्कूल नहीं होगा ना, स्कूल खत्म, राइट? मरियम, नोहा एंड हर्षा। Yes, sir. फिर होमवर्क कीजिए, है ना? होमवर्क नहीं कीजिएगा तो फिर बहुत डिफिकल्टी होगी। राइट, नेक्स्ट। The third application of equilibrium constant is calculation of equilibrium concentration. Calculation of equilibrium concentration, ठीक है? तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे करना रहता है वो आपको थोड़ा बताते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा जरा। We have A and it is giving you, it is in a reversible, it is in equilibrium with B, and you will be given the concentration of A generally, ठीक है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया रहेगा, and you will make I stable, ICE। क्या बनाना है आपको? आई स्टेबल बनाना है। इक्विलिब्रियम का सवाल है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछा रहे हैं, आपको क्या बनाना है? आई स्टेबल। व्हाट इज आई स्टेबल? इनिशियल concentration, the change in concentration and equilibrium। equilibrium मतलब क्या होता है? anyone remember what is equilibrium? लास्ट फर्स्ट क्लास में बताया था हमने, equilibrium क्या होता है? No apparent change. नो apparent change। नो apparent change मतलब क्या बोलेंगे? इसके आगे और कुछ चेंज नहीं हो रहा ना, मतलब वहीं तक होगी रिएक्शन जो भी होना है। मेक सेंस? यस नो? मरियम, हर्षा, देखिए दिस Yes. इज, यही जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that equilibrium is a state when there is no apparent change in the macroscopic property of the system। ये पूरी चीज हो गई, लेकिन there is no apparent change, ये आपको याद रखना है। एंड इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फाइनली क्या होने वाला है ना, फाइनल स्टेज तो ये हो गया ना, जब कोई चेंज नहीं हो रहा बोलेंगे फाइनली हो गया। इनिशियल ये था, फाइनल ये हो गया, when there is no apparent change। लेट अस सपोज they have given us 100 moles of A, इनिशियली 100 moles of A है, B का उन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ है। नाउ देयर विल बी सम चेंज, ऑब्वियसली अगर आपके पास ए है एंड देयर इज नो अमाउंट ऑफ बी, देन आपके पास बस एक ही चीज बचती है, दैट इज देयर विल बी अ फॉरवर्ड रिएक्शन, बिकॉज बैकवर्ड तो हो ही नहीं सकता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, दैट मींस ए से देयर विल बी सम अमाउंट व्हिच विल बी रिएक्टेड। वी विल टेक दिस माइनस एक्स। माइनस एक्स मतलब क्या हुआ कि एक्स रिएक्ट कर रहा है ना, दैट इज व्हाई द कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। टू शो डिक्रीज वी आर शोइंग माइनस एक्स। सी, एक मोल ए से एक मोल बी बन रहा है, एक्स मोल ए से एक्स मोल बी बनेगा। अब यहां पे जो एक्स आएगा दैट विल बी प्लस एक्स। इक्विलिब्रियम में क्या होगा? इनिशियली इतना था, इतना रिएक्ट किया, बचा कितना? 100 माइनस एक्स। और बी में कितना बचा? दैट इज एक्स। सिंपल। आपको दिया रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है इक्विलिब्रियम में? एक्स है। चलिए इसको पूरे अच्छे से लिख देते हैं। के की वैल्यू दी भी रहेगी आपको, दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। लेट्स सपोज आपको के की वैल्यू दी हुई है, के इट इज इक्वल टू 1/2।
ठीक है, k की वैल्यू दी है 1/2, बहुत सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं। अब क्या लिखिएगा यहाँ पे, दिस मींस k का वैल्यू रखा आपने 1/2 इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस x। अब यहाँ पे 100 माइनस x इट इज इक्वल टू 2x। मेक सेंस? यस नो प्लीज टेल मी गाइस। Sir, X is the concentration. सॉरी, Sir, X is the concentration. Oh, हाँ कुछ चेंज हुआ ना, कंसंट्रेशन कम हुआ ना, तो x ले लिया उसको हमने, okay. है ना? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? देखिए, ठीक है, नाउ प्लीज सी। This means I can write x minus x will go there. That means 3x will be equal to 100 and x will be equal to 100 upon 3. That is equal to 33.33. Make sense? Yes or no? Please tell me guys. बोलिए। Yes, sir. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? At equilibrium, concentration of A it is equal to 100 minus x, meaning 100 minus 33.3. इसका क्या मतलब हुआ? We are having 66.7. And the concentration of B, it is equal to how much? 33.3 is equal to X. That is equal to 33.3. This is the basic idea how to calculate concentration if you have been given. आपको क्या क्या दिया रहना चाहिए? Initial concentration and equilibrium constant, and you should also know the reaction. That's it. देखिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताइए? मरियम, नोहा एंड हर्षा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, copy this down. Okay. Waiting for Harsha and Noha. Sir, Tell me, Miriam. what is ICE then? Initial change equilibrium, ICE. Initial What का is I it for? change है, What do we do with it? ये याद रखने के लिए। Okay. टेबल बनाना पड़ेगा आपको, टेबल। ठीक है, वो बताएंगे, समझ में Okay. आएगा धीरे धीरे। Okay. ये आई समझ में है ना? आई इज फॉर इनिशियल, सी इज फॉर चेंज, ई इज फॉर इक्विलिब्रियम। Yes. इनिशियल आपको इतना दिया हुआ, वो लिखिएगा, चेंज लिखिएगा अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री माइनस एक्स, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए प्लस कीजिएगा। इक्विलिब्रियम में Okay. इनिशियल इतना था, चेंज इतना हुआ, बचा कितना। मेक सेंस? Yes. क्या पूछ क्या रहे थे वैसे आप? Nothing, sir. I understood. Aditi. Okay, everyone is done. देखिए, लेट सपोज यू हैव, देखिए आइस टेबल बनाना जो है ना, वो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए लेट सपोज आपके पास रिएक्शन है कुछ इस तरह से, ए प्लस टू बी, इन जनरल हम बता रहे हैं ना, ए प्लस टू बी इज इन इक्विलिब्रियम विद थ्री सी। ठीक है, इनिशियल आप क्या, इनिशियल आप ले लीजिए, इसका ए दिया हुआ है, इसका बी दिया हुआ है, एंड दिस इज जीरो।
प्रोडक्ट नहीं है कुछ भी आपके पास, ठीक है, मान लीजिए चलिए इसका सी भी दिया हुआ मान लीजिए, ठीक है, ए मोलर बी मोलर सी मोलर इतना दिया हुआ है। चेंज जो होगा ना, जो चेंज होने वाला है उसके लिए ध्यान रखिएगा, बिकॉज 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ बी टू गिव 3 मोल्स ऑफ सी। बोलिए एक बार, 1 मोल ऑफ ए, बोलो, 1 1 mole मोल of ऑफ A ए reacts with 2 विद moles of B to give B 3 moles of C. 3 मोल्स ऑफ सी, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो जब ए का एक्स मोल रिएक्ट करेगा, दैट मींस आई विल डू माइनस साइन बिकॉज इट इज रिएक्टिंग। तो जब ए का 1 मोल है तो 2 मोल बी का है, ए का अगर एक्स मोल है तो बी का 2x, that will give you plus 3x of C. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा आपके पास, इट विल बी वट एवर अमाउंट ऑफ ए इज गिवन माइनस एक्स, वट एवर अमाउंट ऑफ बी इज गिवन माइनस 2x, एंड वट एवर अमाउंट ऑफ सी इज गिवन प्लस 3x। ठीक है, सो दीज आर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। अब यहां से बस आपको एक्स फाइंड करना है, जो कि आपको क्या से दिया रहेगा, फ्रॉम दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इक्वेट कर दीजिएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लेकिन सवाल जो आएगा ना, मैं बोला समझ ही नहीं आया करना क्या है, सब कुछ पढ़ लीजिए आप थ्योरी, लेकिन सवाल जब आएगा तब आपको लगेगा ओ माय गॉड क्या है ये सवाल में, कैसे करना है इसको। ऐसे अधूरे अधूरे सवाल रहे, समथिंग इज मिसिंग सर, फीलिंग ये आएगी। देख लिया आप लोगों ने, ठीक है, एक एनसीईआरटी का ही सवाल है इस तरह से, 3 मोल ऑफ PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. Calculate the composition of mixture at equilibrium. Kc is equal to 1.80. तो लिख लिया आप लोगों ने, मरियम, नोहान, हर्षा, Yes, sir. Yes. कुछ समझ आया? हाँ जी बताएं, कुछ समझ में आया? जी, मरियम, नोहान, हर्षा, क्या निकालना क्या है इसमें? The What you need to calculate? concentration. Composition of mixture at क्या equilibrium. मतलब, क्या मतलब कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम? वो तो लिखा हुआ पढ़ दिया आपने 8वीं क्लास, निकालना क्या है लेकिन? किसका Concentration of कंसंट्रेशन? the ठीक है, हर्षा, compound. हर्षा सही है, किसका कंसंट्रेशन निकालना है? PNCl. सॉरी, PNCl. पी एंड सी एल। वाई पी एंड सी एल? पी एंड सी एल कहां से आया? PCl5. PCl5 से पी और सी एल आ गया, अच्छा ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे, यहाँ दिस इज फॉर श्योर, यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग, जो कि एनसीईआरटी वगैरह आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आना चाहिए, दैट इज अ डीकॉम्पोजिशन ऑफ PCl5, है ना। इसका थोड़ा सा रिलेशन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है, थोड़ा सा रिलेशन, ठीक है, कितना रिलेशन है, थोड़ा सा। और अगर हम बात करें तो PCl5 आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो मतलब हम तो क्या बताएं, इतना मजा आ जाता है हमको। PCl5 on heating gives, है ना रिएक्शन, Yes, sir. याद भी है आप लोग को ये रिएक्शन था? No, sir. नहीं, है ना, तो काफी डिटेलिंग है ना। और थोड़ा सा कम से कम इतना भी याद आ गया होगा आप लोगों को कि एक्सियल बॉन्ड वीक होते हैं,
बिकॉज ज्यादा रिपल्शन होता है, तो दे आर इजी टू ब्रेक। अब जब ये ब्रेक करेगा ClCl, तो फिर आपको मिलेगा PCl3, उधर का Cl2 मिलेगा, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग। वहां को लग रहा होगा पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए था। इक्विलिब्रियम का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट हो रहा है। चलिए, PCl5 है आपके पास, एंड व्हेन यू हीट इट, कैसे पता चल रहा है हीट कर रहे हैं? बिकॉज वी आर हैविंग 380 केल्विन टेम्परेचर, एंड नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है आपका दैट इज 298 केल्विन। 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। 380 मतलब काफी ज्यादा उससे। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हीटिंग इट, इट इज ब्रेकिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2। आपको ध्यान देना है अभी स्टोशियोमेट्रीज पे, है ना। किस पे ध्यान देना है आपको? स्टोशियोमेट्रीज पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिएगा, कंसंट्रेशन के बारे में हमको ऑल्सो ध्यान देना है, बिकॉज कंसंट्रेशन आपका कितना है? 1.80। नाउ PCl5 इनिशियली आपके पास 3 मोल है इन 1 लीटर। 3 मोल इन 1 लीटर का मतलब क्या हुआ? 3 मोलर 3 हुआ ना, मेक सेंस। कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 जो होगा इनिशियली, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स 3 डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ, मतलब वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, तो कितना हो गया ये? 3 हो गया, मेक सेंस। अरे भाई हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes. Yes, sir. ठीक है ना। अब चलिए आइस टेबल बनाते हैं ना। आइस, PCl5 का क्या लिखेंगे यहाँ पे? इनिशियली कितना है PCl5? बोलो, जो आ रहा बोलो, है ना। CO. पढ़ो सवाल को। हाँ 3 दिख रहा है ना मरियम? नो, हाँ, ये सुनो। Yes, sir. Yes. ठीक है, दिखना चाहिए बिल्कुल, मेरे मतलब किसी के बोलने पे नहीं, जब हम सवाल पूछे तभी दिखना चाहिए। ठीक है, दिस विल बी 3 इनिशियली। क्या इनिशियली हमने कुछ PCl3 और Cl2 लिया है? अरे बोलो भाई, कुछ है दिया हुआ? नहीं ना। No. No, No. sir. 0 एंड 0, मेक सेंस। ठीक Yes. है, Yes. आगे बढ़ते हैं। चेंज में क्या लेंगे बताइए PCl5 के लिए? -x, 2x, 3x, 4x, 5x, क्या लेना होगा? Minus 3x. Minus 3x. माइनस माइनस कितना? 3x. 3x। वाई 3x? आपको रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री देखना ना भाई। ये देखो, जब 1 मोल है, बताओ, बोलो बोलो बोलो। 1 मोल ऑफ PCl5 गिव्स 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ Cl2 ना। तो क्या रहेगा? -x Minus x. प्लस एक्स और प्लस एक्स। अरे देखो ध्यान से बोल, समझ में आया नहीं आया? एक बार करा चुके उसके बाद भी मिस्टेक हो रहा है। टेल मी मरियम। Sir, how do I know if it is minus or plus? माइनस रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट। Oh, वाई रिएक्टेंट इज माइनस? because it's reacting. ये कोई मतलब हुआ? अरे तो ऐसे जवाब दिया जाएगा? Because वाई रिएक्टेंट, सोचो जरा, सोचो। it's इट्स व्हाट? it will get um transferred to the product. हाँ, उसका अमाउंट कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। Yeah, yeah, yeah. ठीक है, Yes. लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल है चीजें यहाँ पे। वो मतलब हमने आपको याद करने के लिए बोल दिया कि रिएक्टेंट में माइनस होगा, प्रोडक्ट में प्लस होगा, लेकिन रीजन आपको पता होना चाहिए क्यों रिएक्टेंट में नेगेटिव हो रहा है। वो मेरे बोलने की वजह से नहीं, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं। तो चेंज अगर आप लिखिएगा तो चेंज 2 तरीके से हो सकता है, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। टू शो इंक्रीज ऑफ चेंज विच इज इंक्रीज प्लस पॉजिटिव, है ना, ज्यादा बढ़ रहा है, Yes. प्लस है। और जब डिक्रीज शो करना होगा तो -3, -4, तो -x, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द चेंज एक्चुअली, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग x। और जो ये जो होता है ना, ये स्टोशियोमेट्री रिएक्शन देख के ही पता चलेगा, इससे लेना देना नहीं है ABC से। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम आपके स्कूल में कराया गया है तो ये चेंज नहीं लिखाया जाता होगा, सीधा इक्विलिब्रियम में आपको ये लिखा दिया जाता होगा, इक्विलिब्रियम लिखा दिया जाता है, जहां तक हमको लगता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपको बोलते होंगे लिखने के लिए -3 -x लिखो। पता नहीं, शायद इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। चेंज में आपको सिर्फ ये देखना है, सोशियोमेट्री देखना है, फिर 3 - x, 0 + x क्या हो जाएगा? सिर्फ x, 0 + x क्या हो जाएगा? सिर्फ x हो जाएगा। मेक सेंस? Yes, sir. बाकी लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नोहा एंड मरियम। Yes, sir. नाउ दीज आर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ना, है ना। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है ये सारे। अरे हाँ या ना, Yes. कुछ तो बोलो।
ठीक है. Yes, sir. Now what is Kc? Kc it is equal to concentration of products upon reactant. Product का concentration में क्या आएगा? PCl3 into Cl2 divided by PCl5. चलिए Kc कितना दिया है बोलिए गाइस. What is the amount of Kc? 1.80. 1.80. What is the concentration of PCl3 at equilibrium? X. मरियम नुहा आंसर क्यों नहीं आया? X. नहीं 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 वो नहीं पूछ रहे मैं. आंसर आया क्यों? I was writing. यू आर राइटिंग. Yeah. नहीं डोंट राइट ना प्लीज आंसर दी. लिखने से क्या फायदा होगा अगर आप समझ नहीं पाए चीजों को. अगर लिखने में आप ध्यान रहा आपका आपने सुनी अपनी चीजें सुनी नहीं तो क्या फायदा होगा लिखने. ठीक है. Yeah. नथिंग ऑफ इट दिस इज गोइंग टू मेक सेंस इफ यू डोंट. सारी चीजें तो एनसीईआरटी में है ना. है कि नहीं मरियम? Yes, sir. पढ़ने से समझ में आता है. No. हाँ तो फिर तो समझने में ध्यान दीजिए. अभी लिखने के लिए है चीजें है ना. आई विल गिव यू एनफ टाइम डोंट वरी. कंसंट्रेशन ऑफ PCl3. X. कंसंट्रेशन ऑफ Cl2. X. कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 नुहा. 3 minus X. ठीक है. अब ध्यान दीजिए जरा. थोड़ा सा हम आपको ना सॉल्व करने के लिए आसानी कर सकते हैं. व्हाट वुड बी बेटर. हम इसको 1.8 को 18/10 ले लें या नहीं लें. क्या करें बताइए. ले ली 18/10. आई Yes, थिंक इट sir. विल बी मोर हेल्पफुल ना. 18/10 कर लेते हैं इसको. Yes. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा x² अपॉन 3 माइनस एक्स. दिस विल बी व्हाट 9 and 5. करेक्ट है ना. 9/5. So this will be 9 into 3 minus x is equal to 5x square. 9 threes are 27 minus 9x is equal to 5x square. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है आपके पास. आप इसको क्या कर सकते हैं. इसको इधर भेज दीजिए. तो आपके पास आ जाएगा 5x² प्लस 9x माइनस 27 इज इक्वल टू 0. ठीक है. मेक सेंस. सुनो प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. x निकाल लेंगे अब या Yeah. याद है आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Yes, sir. क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए. x इज इक्वल टू बोलो भाई. Minus B plus minus under root माइनस बी प्लस माइनस square Root of BSC. b² माइनस 4ac अपॉन Two. 2. 2. 2a. चलो एंड देन कैलकुलेट द x. ठीक है. दो वैल्यूज आएंगे दोनों वैल्यूज बताइए आप. अगर आपने समझा नहीं है तो फिर आपसे नहीं होगी सवाल. ठीक है ना. तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ कहीं पे आपको लग रहा है कि आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल हियर तो प्लीज उन चीजों को पूछ लीजिए. ला, 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 ला. मरीम आपका कौन सा स्कूल है. New Middle East. रियाज. Yes.
So the under root value is 621. We need to calculate that also. Under root value is 621. 621. That's a bit weird. ऐसा वाला 621 नहीं आना चाहिए. What's b square? B square is 81 minus 4ac. इतना बड़ा वैल्यू कैसे आ रहा है? Which is 81 ना, b square is right. So C is 27. c is 37. 27 है ना, Yes, sir, 27. तो माइनस भी तो हो रहा है फिर. Into Then 5 minus into minus, right? into 27. It is minus 459. b square minus 4ac. देखिए जरा फिर से. Sir, even I got 621 621. root of 620. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा, वो माइनस माइनस वहां पे ऐड हो जाएगा ना 4ac में. -27 है. ओके, मेक सेंस. तो रूट क्या कीजिएगा उसको? 621 इज वेरी नियर टू 625, तो 24.9 कर लीजिए इसको, है ना? अप्रोक्सीमेट वैल्यू. मेक सेंस. So we can do that in the exam. हाँ हाँ, फॉर श्योर. और क्या, आप मैथ्स के एग्जाम में ना रूट निकालने बैठिएगा आप वहां पे, ठीक है? Sir, you said 24 point? आई एम जस्ट सेइंग कि देखिए 625 इज वेरी नियर ना. 625 किसका रूट होता है? Yeah. 25, राइट? Yeah. रूट ऑफ 621 विल बी 24.9 Okay. प्रोबेबली. मतलब एग्जैक्ट नहीं वैल्यूज हैं ऑब्वियसली. So both values are considered. सॉरी, Both the values are considered, बोथ दी वैल्यूज मतलब like the minus and the plus. आप बताइए. Logically, you can tell me which will be considered and which will not be considered. Okay. Only the plus ones. Why the negative will not be considered? Concentration can't be negative. Correct. That's correct. Very good. कितना आंसर आया आपका? Sir, 1.59. मरियम, हर्षा आपका? Yes, yes, same. 1.59. 59. 59.
आप उसके आगे क्या करेंगे, उसके आगे कुछ नहीं करेंगे? C minus 1.59. इसमें आपसे कंपोजिशन पूछा हुआ है ना, एक्स आपका, नोहा आपका आया, एक्स की नहीं आया? Yes, sir. यस नोहा, कितना आया? 1.59. आपको ये 1.59 आ रहा है? जस्ट लेट मी सी। नो नो एप्लीकेशंस। हाँ, दैट इज करेक्ट, 1.59, द वैल्यू ऑफ एक्स 1.59। ठीक है, अब आपके पास विल हैव टू टेल दी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में क्या गया, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 कितना है, that is equal to 3 minus x, that will be equal to 3 minus 1.59. Concentration of PCl3 is equal to the concentration of Cl2, दोनों का concentration equal है, that is equal to x, which is equal to 1.59, है ना? इसकी concentration तो 1.59 1.59 है, PCl5 की कितनी हो जाएगी? 1.41. 1.41। गॉट इट? कैसे करना है ये सुनो। Yes, हाँ sir. जी बताएं। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालिएगा आप लोग, कंसंट्रेशन निकालिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अगला सवाल है आपके पास, ये खुद करना है आपको। ये इसको इग्नोर कीजिए आप, है ना, ये आपके पास O2 नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं है, ये O2 है सिर्फ, है ना। रिएक्शन बिटवीन N2 एंड O2 टेक्स प्लेस एज फॉलोज। इस तरह से आपके पास टेक प्लेस कर रहा है। सवाल यहीं पे देख लीजिए, लिखने के आपको मतलब लिखना है तो लिख लीजिए जो भी वैल्यूज अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, वैल्यूज लिखने के लिए क्या क्या होंगे, अ मिक्सचर ऑफ 0.482 मोल ऑफ N2 and 0.933 मोल ऑफ O2 प्लेस्ड इन अ 10 लीटर रिएक्शन वेसल। अब इसमें यहीं पे आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ N2 is equal to 0.482 divided by 10, है ना, and concentration of O2 is equal to 0.933 divided by 10। मेक सेंस? ये सुनो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, and allowed to form N2O at a temperature for which Kc is given। तो आपको क्या दिया हुआ है, Kc is given as 2 into 10 to the power minus 37। डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब यहां से आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइस टेबल के लिए क्या करेंगे, 2 moles ऑफ N2 प्लस O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 moles ऑफ N2O। चलिए आइस टेबल में बताइए, आई में N2 के लिए कितना लिखें, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ N2? Minus 2x. अरे यार इनिशियल तो बताओ, ये इनिशियल है ना, ये तो चेंज नहीं है ना। Oh, a 0.048. 0 पॉइंट, हाँ 482/10 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज रहने दीजिए, है ना। O2 के लिए 0.933/10. मरियम, नोहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? yes, sir. आप बोलो, चेंज कितना होगा हर्षा, इनको बोलने दीजिए, मरियम एंड नोहा, व्हाट विल बी द चेंज फॉर N2? Minus 2x. -2x। O2 के लिए Minus x. -x, और N2O के लिए X. 2x. +2x। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 0.482 डिवाइड बाई 0.482 10 minus माइनस 2x। इसका क्या हो जाएगा, 0.933 डिवाइड बाई 10 माइनस x। इसका क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 10। वाई अपॉन 10? बिकॉज ये तो हम मोल्स लिख रहे हैं ना यहाँ पे। अच्छा नहीं, अपॉन 10 2x ही होगा, माय बैड, 2x ही होगा, बिकॉज ये कंसंट्रेशन यहाँ पे उसको टेक केयर कर लेगा। ठीक है, 2x ही होगा। दिस इज कंसंट्रेशन ना, x यहाँ पे कंसंट्रेशन बताएगा आपको। ठीक है, चलिए डू इट नाउ। AC इज इक्वल टू करके कीजिएगा।
क्या लगता है आप लोग को, सॉल्वेबल है? चलिए गाइस। हम्म। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। So can we take 0.48 as 0.5? 0.48 एज 0.5 और 0.933 को 1। 0.9. 0.1 कैसे भाई, 1 लेंगे ना फिर तो। 9. 9। 9. 0.9। हाँ ठीक है, ठीक है, उतना अप्रोक्सीमेशन चलेगा। चलिए बताइए तो जरा, केसी इज इक्वल टू क्या लिखा आप लोगों ने? यू मस्ट हैव रिटन ना केसी। क्या लिखा मरियम, स्टार्ट कीजिए जरा। N2O, कंसंट्रेशन ऑफ N2O। 2, 2। क्या 2? अच्छा हाँ ठीक है, आप भेजिए, फोटो भेजिए, फोटो भेजिए मरियम। कैन यू सेंड फोटो? uh, okay. ठीक है, भेजिए भेजिए। ऑल ऑफ यू गाइस सेंड मी व्हाटएवर यू हैव डन टिल नाउ। जो भी किया आप लोगों ने। केसी तो कम से कम सही लिखा हो, नहीं लिखा हो देखते हैं। केसी लिखना भी मतलब इट्स नॉट, मतलब ऐसे ही नहीं है। कुछ याद होना चाहिए आपको, केसी कैसे निकालते नहीं निकालते, कैसे लिखते नहीं लिखते। लेट मी सी। जल्दी भेजिएगा मरियम, बट ठीक है ना, देर मत कीजिए, सेंड मी क्विकली। बोथ ऑल ऑफ यू गाइस, नोहा एंड हर्षा, यू टू आल्सो।
Noha and Mariam have got. अरे एक बात बताइए, ये तो सही नहीं है ना, कैसे डिवाइड किया आपने, 0.2 कैसे लिख दिया? हाँ मरियम, if you are going to solve this, it will be equal to 0.482 minus 20x divided by 10, right Mariam? Yes, sir. Why have you written 0.2 कैसे हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर नहीं किया आपने, एक्स 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 और माइनस टू एक्स नहीं, इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन लिखते हैं। नो हाँ, इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन ये सारी हैं। वाई वी आर रिटन ओनली एक्स एंड टू एक्स? नो हाँ, केसी में इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन लिखते हैं। Okay, sir. सेम गोज फॉर हर्षा ऑल्सो। हर्षा हर्षा आपने सिर्फ और सिर्फ 0.933 कर दिया, 0.048 कर दिया। I got. गॉट इट? Yes. ठीक है, लेकिन आप रुक जाइए स्ट्रेट के। यहाँ पे आप लोग ये बताइए गाइस कि देखिए एक्स तो आप लोग को यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए ना, एक तरीका है जिसमें आप एक्स को अवॉइड कर सकते हैं। व्हाट इज दिस वैल्यू टेलिंग यू गाइस? क्या ये वैल्यू कुछ बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है? हाँ भाई, ये वैल्यू कुछ बता रहा है नहीं बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है। अरे के वैल्यू से कुछ तो पता चलता है ना। पहला एप्लीकेशन क्या था, देखिए कॉपी में। हाँ क्या है हर्षा? Extent. एक्सटेंड। तो इस वैल्यू से क्या पता चल रहा है, क्या एक्सटेंड होगा? जो इक्विलिब्रियम होगा वहां पे किसकी कंसंट्रेशन मिलेगी हमको? Reactant. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। मरियम नोहा कुछ आया नहीं आया? बताइए, बोलो बोलो मरियम एंड नोहा। Yes, sir. Yes, sir. क्या यस सर? बोलो, नहीं आया ना? Reaction dominate रिएक्टेंट डोमिनेट करेगा, क्यों डोमिनेट करेगा? because K is less than 10 raised to the power minus 3. वेरी स्मॉल। नोहा आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर देखो, अगर हम बात करें कि reactant, this value will be very less, this value will be very less, even this value will be very less, लेकिन ध्यान दीजिएगा, if I compare 2x to this value, then I can say that 2x is very 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 less। मतलब उसमें आप कुछ माइनस करेंगे ना, 0.0482 में 2x को माइनस भी करेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेक सेंस, ये सुनो, ये बात समझ में Yes. आएगी नहीं है? ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी 0.933 से x को कंपेयर करेंगे तो दैट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x विल बी सो स्मॉल कि आपने अगर 0.093 से कुछ माइनस भी किया तो वो माइनस करना मायने नहीं रखेगा, इट विल नॉट बी अफेक्टिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मतलब दिस वैल्यू विल बी सो, कितना कम होगा सोचो आप कि अगर केसी की हम बात करें तो इट इज लाइक 1/10 के बाद 37 जीरोस। अगर आपके पास वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 इज फॉर्म जब रिएक्टेंट में 10 टू द पावर 37 क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, दैट इज व्हाई कंपेयरिंग 0.0482 by 10 and 2x will be very small, negligible। केसी जो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, एंड वी विल राइट हियर डिवाइड बाय N2 का कंसंट्रेशन का स्क्वायर एंड O2 का, लाइक दिस ओनली। सो N2O, अब देखिए आप बोलेंगे सर इसको भी नेग्लेक्ट कर दे क्या? नहीं,
नेग्लेक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन में, प्लस में माइनस में। मेक सेंस है? सुनो, बोलो भाई, ठीक है? Yes, sir. Sir, ऐसे but नेग्लेक्ट there लिखा also था the ना, बोलना same हाँ, X एक rate. सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ हर्ष बोलिए। Sir, there also the same X rate. हाँ, देयर इज आल्सो द सेम एक्स, बट इसको But कंपेयर करने के लिए कोई नहीं है ना। मतलब आप ये समझिए कि आपने किसी को दिए 1,000 रुपए, ठीक है अच्छा, yeah, और एक आदमी को दिए आपने 1,01,00,000 रुपए, ठीक है? okay. आगे बोले या फिर समझ गए आप? Yes, sir. समझ गए? No, sir, I didn't. नहीं समझे? आगे बोले? अच्छा ठीक है। तो जिसको आपने 1,01,00,000 रुपए दिए हैं, अगर वो आदमी आपको 1 करोड़ रुपए वापस कर दे, तो क्या आप 1,000 रुपए मांगने जाइएगा? अरे No. बोलो भाई, या मत बोलो, अंबानी है मान लो यार, कुछ तो रिस्पेक्ट करोगे। किसी ने अगर 1 करोड़ रुपए दिए, 1,000 रुपए नहीं भी दे रहा है मान लो, तो उसका इतना होगा, ठीक है भाई, मोस्ट ऑफ द अमाउंट दे दिया। और दूसरा है जिसने आपसे 1,000 रुपए लिए थे और वो 1,000 रुपए नहीं दे रहा है, तो किसके पास भागेंगे आप? कौन से 1,000 के पास भागिएगा? 1 करोड़ वाले 1,000 के पास, या फिर जिसने आपसे सिर्फ 1,000 रुपए लिए थे उसके पास? Only 100. ओनली 1,000 है ना? Yeah. 1 करोड़ रुपए को छोड़ भी दीजिएगा, तो वही बात है ना, जब आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं सेम 1,000 रुपीज ना, सेम 1,000 रुपीज, मेक सेंस हर जगह, Yes, sir. है ना? नहीं, क्या बोल रहे हैं? हाँ है ना, कॉन्फिडेंस से बोली कम से कम, Sir, मेक saying सेंस? the reactant will neglect it. नो, व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद समथिंग, अगर हमने रिएक्टेंट की बात नहीं है, अगर यहाँ पे 1 होता ना, लेट सपोज यहाँ पे 0.1 मोल ऑफ N2 हम स्टार्टिंग में ही ले लिए रहते, तो अब तब भी हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते, बिकॉज 0.1 में आप बहुत छोटी सी अमाउंट ऐड करोगे। लेट सपोज 2x जो आएगा आपका ना, कंपैरेटिवली अगर आप देखिए जरा, तो 10⁻20 के करीब आएगा। तो 0.1 में से आप 0.00000000000001 माइनस करके भी क्या कीजिएगा? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, बट अपने आप में अगर आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब प्रोडक्ट जीरो होगा क्या? नहीं ना, प्रोडक्ट का अमाउंट तो फिर जीरो हो जाएगा अगर इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे एक्स को तो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यू वी नेग्लेक्ट ओनली व्हेन, जब आपके पास 1,01,00,000 की 1,000 को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मतलब आप उसको थोड़ा सा अमाउंट छोड़ दो, जैसे 10 रुपए मान लो ना आप, 10 रुपए कम हो जाता है आप लोग के इसमें, आप मान लीजिए 100 रुपए। 100 रुपए कितना रियाल होगा? रियाल के दिमाग चलता है ना आप लोग का, तो फिर I. हाँ, you know what is 100 rupees, but whenever you buy something, do you convert in your head into rupees? Yes, sir. या यू अच्छा, आप कन्वर्ट करते हैं। है ना, हमको लगता था कि जो लोग इंडिया से जाते हैं उधर ना वही कन्वर्ट करते हैं, जो लोग वहां पे पैदा हुए हैं शायद वो लोग रियाल में ही सोचते हैं। नो, यू आल्सो कन्वर्ट? No, sir. नहीं, नोहा रियाल में ही चलती है, हर्षा कन्वर्ट्स। योर पेरेंट्स कन्वर्ट, नोहा? Yes, sir. हाँ हाँ, नहीं ठीक है, देन माय जनरल ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, कि जो लोग इंडिया से जाते हैं वहां वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि जब भाई कंपेरेटिव आए ना, कि ऐड करने, कोई छोटी अमाउंट को ऐड करना, कोई छोटी अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना, तो उस छोटी अमाउंट को वहां पे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, बट जब वो छोटी अमाउंट अपने आप में ही मौजूद हो, इफ इट इज इंडिविजुअली प्रेजेंट, देन वो छोटी अमाउंट को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट दी -2x एंड -6, और यहाँ के 2x को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो आंसर आएगा ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 2 × 10⁻³ एज इट इज लिख दिया हमने, दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc, N2O is 2x स्क्वायर्ड डिवाइड बाई N2 में सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, 0.0482 डिवाइड बाई 10 कर दिया, -2x को नेग्लेक्ट कर दिया हमने, है ना, इसका स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पे लेंगे O2 दैट इज इक्वल टू 0.0933, दैट्स इट। नाउ विल राइट 2 into 10⁻⁻37 is equal to 4x square divided by 0.0482। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, मतलब 0.
0.05 लेके अगर 1000 से ये करते हैं, then we have to multiply 5 there. अप्रोक्सीमेट आंसर आप लोग के पास सही आ जाएंगे, यू डोंट हैव टू वरी टू मच. 0.0482 को आप 0.05 लिख लीजिए, इसका स्क्वायर, एंड हियर यू विल राइट 0.09. ठीक है, और 2 into 10 to the power minus 37 is equal to 4x square divided by 5 upon 100 into 5 upon 100 into 9 upon 100. ठीक है, सो ये उधर जाके पलटी हो जाएगा. सो 4x square will be equal to 2 into 10 to the power minus 37. This will be equal to into 100 upon 5 into 100 upon 5 into 9 upon 100. Does this make sense? 9 upon 100, 100 upon 100. My bad. Does this make sense? Yes or no? Yes. Yes, sir. पक्का ना? नोहा, मरियम, हर्षा. Yes, sir. Yes. 4x square. अब यहाँ से आपके पास 2 0 2 0 2 0, कितने जीरो हो गए? This is 6 zeros. तो this will be 2 upon 5 5 25 25 into 9 2500 में से 2225 2225 into 10 to the power minus 31. ये देखिए मल्टीप्लिकेशन सही है ना? 25 10 से कितना होगा? नहीं इतना नहीं होगा, 225 होगा. 225 होंगे ना? हाँ ठीक है, इतनी वैल्यू आ रही है. और एक और काम ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 225 इंटू 4 टू द पावर माइनस 31. तो ये भी कट गया. दिस इज नाउ 2. ये तो बढ़िया हो जाता है यार, 5 10 हो के. 225 का डबल कितना हो जाएगा? 50 50 का इधर 200 200 का 400 450 है ना. 1 अपॉन 450 450 सही है ना. 200 200 400 25 25 50. ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 31. और इसको अगर हम और ये करें, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 45 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मींस 10 टू द पावर माइनस 30. हाँ, नाउ 1 अपॉन 45 क्या वैल्यू होगी 1 अपॉन 45 की? Sir, दिस इज इक्वल टू 225 is 15, so we can do from that, right? 0.0222 ना. Sir, Correct can we है? leave the answer at there? कैन वी? Can we leave the answer like in under root? नहीं नहीं, करते हैं ना इसको, क्या चिंता है. इसको क्या कर सकते हैं, 22 दिया हुआ है ना, 222 225 होता है किसका? 5 का 15 का 15 स्क्वायर इज 225 ना. Yes, sir. ठीक है, 222 कर लीजिए इसको. अब दिस विल बी 222 डिवाइड बाई 1 2 3 4. ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 30 स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 222 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 27. सही है. करेक्ट है ना? देखिए 3 0 कट जाएगा, माइनस 27. ठीक है, सो नाउ आई कैन राइट एक्स विल बी इक्वल टू, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 14.9 है ना, इनटू 10 टू द पावर माइनस 27 का रूट हो जाएगा. 10 टू द पावर माइनस 27 का रूट होने के लिए 27 का आधा कितना होता है? 13 बचेगा और एक अंडर रूट 10 बचेगा. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं. अंडर रूट 10 इज अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग. ये माइनस रहेगा यहाँ पे. ये समझ में आया कि नहीं आया? No, गाइस sir. यू गॉट दिस? यस मरियम? No, sir. नहीं समझ में आया. देखिए 10 टू द पावर माइनस 27 क्या लिख सकते हैं आप? 10 टू द पावर माइनस 26 इन, यहाँ पे तो 10 टू द पावर माइनस हो जाएगा ना. इट विल बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द रूट नाउ. इसके लिए हमको थोड़ा सा अब यहाँ पे मैनिपुलेशन है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे. I will be not taking 222.
आई हैव टू कीप द पावर इवन। तो यहाँ पे हम सिर्फ 22 ले लेते हैं इसको। 22 लेने के बाद इसको करते हैं 22 अपॉन, वो नहीं ठीक हो जाता यार, सॉरी, 4 जीरो है ना, हमने 3 जीरो रखे थे यहाँ पे। 2 टू 2 डिवाइड बाई 1 2 3 4 इंटू 10⁻30 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सो इट विल बी 2 टू 2, यानी कि 2 टू 2 इंटू 10⁻26 होगा एक्स स्क्वायर। तो रूट लेंगे अगर इसका, तो बी रूट ओवर 2 टू 2 इंटू 10⁻26। ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 टू 2 इंटू रूट ऑफ 10⁻26। रूट का मतलब देखिए, 2 टू 2 का रूट कितना हो जाएगा, 14.9 अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज 2 टू 5 इज 15 स्क्वायर इंटू रूट का मतलब होता है डिवाइड बाई 2, पावर में 1/2, तो -26 से कितना हो जाएगा, -26/2, so will be equal to 14.9 into 10⁻30। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। और आपको क्या निकालना है, 2x आई थिंक, राइट, N2O के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ N2O is equal to 2x. This will be equal to how much? 29.8 into 10⁻30। ये समझ में आया आप मरियम? Yes, sir, but it's so hard. What? I understood, but it's hard. That is true. It is hard. This calculation, it is hard. No worries. एक बार हम बस एक बार चेक कर लेते हैं ना, if my calculations are correct or not. 5/100, 5/100, then 4x square is equal to 10⁻37, and न्यूमरेटर चला गया। Oh, what's this wrong? This is not right ना, देखिए तो जरा। When I was multiplying, I should have multiplied, मतलब इसको पूरे को इधर भेज देना चाहिए था ना। हर्षद सी, I think I did a mistake here. That's correct, right? I don't think so it is correct, because this is divided by, na? Let me see. 2 into 10⁻37, इसको अगर हम पूरा सॉल्व करते तो it will be this denominator of numerator, तो ये तो ऊपर चला जाता, 4x square into 10⁻6 हो जाता, डिवाइड बाई 5 into 5 into 9। अब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाता और 10⁻6 नीचे आता। आई डिड उल्टा। You still think it is correct? No, sir. चलिए, तो भाई स्टार्टिंग में गलत हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारा कंफ्यूजन था। Mariam and Noha, you got the mistake what I did? देखिए, अगर हम यहाँ से आते हैं ना, तब शायद आप लोग को समझ में आए। 0.5 स्क्वायर को ऊपर भेज दें। देखिए इधर 37 इंटू 0.05 स्क्वायर, करेक्ट, इंटू 0.09। मरियम एंड नोहा, Yes, sir. ठीक है। अब इसको यहाँ पे खोलते हैं ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं पहले, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻37 इंटू 5/100 होता है ना, इंटू 5/100 इंटू 9/100। नाउ इट मेक सेंस, Yes, sir. है ना। तो ये कुछ और आंसर आता यार।
and x square is equal to 2 by 4 into 10 to the power minus 35 into 35 था 37 ना no. 5 is 25 into 9 25 into 9 upon this is 10 to the power 6 अब ये होता आपके पास 2 सा x square is equal to 10 to the power minus 6 ये ऊपर जाता तो इट विल बी +6 नहीं प्लस सॉरी यहाँ पे ये तो +6 है ऊपर जाएगा तो -6 37 और ये हो जाएगा आपका 25 into 9 divided by 2 25 into 9 is 225 divided by 2 into 10 to the power -37 से हो जाएगा -43 this makes sense tell me guys Yes, sir. Yes. हाँ मेक सेंस ठीक है इसको करना पड़ेगा 225 का आधा कितना हो जाएगा बी 12 5 112.5 ना करेक्ट सही है हाँ गाइस Yes, sir. इसका करते हैं हम दिस विल बी 0.5 को अगर हम हटाएं तो इट विल बी 1125 into 10 to the power minus 44 this is x square x will be equal to under root of 1125 into 10 to the power minus 44 so this will be equal to 1 root of 1125 into 10 to the power minus 22 इसका था 44 से 22 make sense Mariam and Noha Yes, sir. Yes, sir. under root of 1125 what is near this value 1125 से आसपास कौन है is there any value which is nearby नो वैल्यूज 11 चलिए ठीक है आपका 10 नहीं 10 नहीं 25 30 30 is 33 It's 1089. 33 कितना है 1089. 1089 so this is a bit greater than 33 33 into 33 1089 34 is 1156 33 का है 1089 34 का है 1156 तो आई थिंक इट इज जस्ट नियर बाय 34 ना देखिए Yes, sir. इससे कितना दूर है ये 89 में कितना ऐड करें तो 25 आ जाएगा 25 और 11 और इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली बीच में आएगा 3.6 33.6 ले लीजिए इसको 33.6 मिडवे से थोड़ा आगे इंटू 10 टू दी पावर -22 ठीक है तो अब ये बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू ना तो इसमें ये जो माइनस है ना दिस इज ओनली गोइंग टू मैटर ये मैटर भी नहीं करता आप अगर इसको 34 भी ले लेते तो ठीक है दिस इज द वैल्यू ऑफ x and what we need the concentration of N2O this is equal to 2x so this will be equal to आपका हो जाएगा इसका डबल कर देना है आपको 33 का 3.6 into 2 कितना हो जाएगा 67.2 into 10 to the power -22 स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 6.72 into 10 to the power -21
दिस इज द कंसंट्रेशन मोलर ऑफ N2O. बाकी की कंसंट्रेशन उतनी ही लिख दीजिएगा, यू डोंट हैव टू चेंज इट. इस वैल्यू का आप क्या ही माइनस कीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल यू हैव व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ N2, है ना. N2 की कंसंट्रेशन आपके पास 0.0498 क्या है, 0.0482. 0.0482 में आप ये बताइए, इसको माइनस कर सकते हैं क्या? कितना छोटा वैल्यू है ये, है ना. Yes, sir. मतलब आपके पास 22 पावर्स हैं, उसके बाद इतना है. सो ये इतना ही रहेगा. एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 विल बी आल्सो सेम, 0.0933. ठीक है. इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है, The दिस unit क्वेश्चन. will be in molar. हाँ, मोलर, यूनिट विल बी मोलर.